So Pramod, how has the journey been? मतलब you are the innovator in the country for the first time. आज सैकड़ों कंपनीज हैं, लेकिन आज भी लोग जायकॉम ये शब्द भूल नहीं सकते हैं. In 1993, Bombay had lot of bomb blasts. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि why don't we get into security because वो बहुत बड़ा मार्केट होगा. तो मैंने सुना है कि तेरे को कार का शौक बहुत ज्यादा है. नहीं, गाड़ियां तो इतनी है कि अगर ये बंबई में रहते, इंडिया में रहते तो शायद हर महीने इनकम टैक्स रेड होती. कि मुकेश अंबानी का बेटा जो आकाश है वो वहाँ पैदा हुआ, मतलब मुकेश के वहाँ, और रोड पे भी जो जन्मा है लड़का, रोड पर जो पैदा हुआ, अरे ये भी है इंसान है, वो भी इंसान है. करेक्ट. इतना डिफरेंट क्यों है भाई? ये ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी फिलोसफी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बोलना शुरू करता है. नहीं. Hi friends, this is Agnello Rajesh here. I am here at the Sante Spa Cuisine at Nesco in Goregaon East. We have got multiple Sante restaurants across the country. I'm here with some very interesting entrepreneurs, very interesting personalities who have been there, done that, seen the world, traveled across the world, did business across the world, and we are going to dive into their insights. This is happening at, like I said, Sante Spa Cuisine in Goregaon East. So we are going to be having a very interesting, slow-paced, it is late for lunch, but I can call it as a lunch. We are going to be having that, and during this meal time, we are going to have some very interesting conversations. And I've got people from all across the country and the world. I've got Mr. Sanjay Thakkar all the way from Ahmedabad in Gujarat. I've got my very dear friend again, Mr. Pramod Rao from Mumbai. So we are neighbors. I've got Savan Shah all the way from Atlanta in the US, in the United States of America. So he's a Indian origin American citizen. So he is the foreigner here. And we are just going to have some deep dive conversations. By the way, Sante is a very interesting concept. It is different. It's not just a restaurant. It is a culture. It is a community. And we are going to be enjoying some very interesting menu on board today. So the menu for this takeoff flight of conversations is going to be, we are going to be served with a welcome drink to begin with, and then we are going to have a concept of a dish called Cocoa Nutcracker. We'll discuss that later, followed by the Burrata Orchard. Then we are going to be having the roasted sweet potato tikki chaat. We are having the Moong turmeric hummus. We are going to be having heritage farmed organic bajra risotto, and we are going to be concluding with a very famous sweet dish that's going to be the Sante tiramisu. So the menu is something very interesting. It has been curated by our chief chef, Shailendra Kekade. Is a celebrity chef. And definitely the founder, Sonal Barmecha, plays a very critical role in the concept and its growth for Sante Spa Cuisine. And most of the food that you'll ever eat in Sante Spa Cuisine is not only made only in Sante, but also invented by Sante. Wow. Really? Wow. Yes. So, like how we are inventors. Sonal did that? Sonal Barmecha did this 10 years back, along with our chief chef, Mr. Shailendra Kekade, who is there with the setup from day one. Okay. And he's the magic man. No colors, no flavors, no additives, no preservatives gets used in Sante Spa Cuisine food. And that's what makes it very, very different. The combination of ingredients creates the flavors, and the man behind it is Chef Shailendra Kekade. So, Rajesh, in fact, I have gone to your BKC outlet. yes, Exactly what you narrated was my experience there. fantastic, fantastic. Savan has been at multiple outlets. Yes. Sanjay Thakkar, for the first time, he is coming into a Sante, and I'm sure. But it's a very nice ambition and very nice arrangement, and everything is good. Yes. Everything is good. और आपके अहमदाबाद में भी एसजी रोड पर बहुत बड़ा सांते स्पा कुजीन है, Yeah. जहाँ पर आपको भाभी को लेके जाना और तजुर्बा लेना है उस सांते का भी. अच्छा. सो लोग हमारे पास आते हैं और हम भी लोगों तक पहुँचते हैं. So I've been to pretty much all of them. Sante, main Sante is in Pune, Yes. and I The visited. Koregaon Park wala. The Yes. Koregaon Park. Yes, and then next one in BKC, BKC I think. and also they have one in Osiwara. Yes. So I visit all the Sante, and Chalo. the quality and quantity and the food
taste of the food is same everywhere. Yes. Absolutely, Yeah, which is the absolutely. good That part is, of that. कोई भी कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है Consistency also. and consistency also. And food, and food quality. And food quality also. So all that happens here. So this is the menu. I'll keep the menu aside from the plate so that we can start enjoying the food as well. और ये शो में अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं. मेरे दोस्त प्रमोद राव, ही इज अ टेक एंटरप्रेन्योर. इन्होंने भी हिंदुस्तान में क्रांति मचाई थी बहुत साल पहले इन द 90s, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स इस देश में इंट्रोड्यूस किए थे. संजय ठक्कर साहब बहुत अलग किस्म के डेवलपर हैं. मतलब मुझे ना ऐसे डेवलपर्स के बारे में मालूमात है जिन्होंने ज़मीनें खरीदी, प्लॉटिंग के स्कीम्स शुरू किए और बाद में बिल्डर बन गए. संजय ठक्कर एक ऐसे डेवलपर है जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू की, मतलब उन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए, बंगलोज बनाए, और आज एक बहुत अद्भुत लेवल पर और बहुत अलग स्टैंडर्ड का प्लॉटिंग डेवलपमेंट करते हैं अहमदाबाद में. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा रिवर्स ट्रेंड क्यों? जनरली डेवलपर प्लॉटिंग से शुरू करता है और बाद में कंस्ट्रक्शन करता है. आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और फिर बाद में आप प्लॉटिंग डेवलपमेंट में गए. गॉड, पिताजी ने कुछ इतना तो मेरे को दिया नहीं था. हाँ. होटल दिया था. हाँ. इसमें से चलते 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 मैं थोड़ा आगे बढ़ गया. हाँ. एक प्रोजेक्ट किया, दूसरा किया. पहले एक होटल किया था. ओके. होटल बना, पिताजी ने होटल का बिजनेस था. पिताजी ने होटल दिया, होटल का कस्टमर आ गया, बन गई तो वो बेच दिया. बाजू में प्लॉट लिया, और नीचे शॉपिंग आ गया, ऊपर कॉमर्शियल आ गया. तो उस तरह से हम कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट किया हमने. लेकिन मेरी एक हैबिट थी. हाँ. जैसे भी ये कंस्ट्रक्शन में जो थोड़ा बहुत जितना प्रॉफिट आता था, इसमें से 20%, 30% ऐसा मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देता था. अब माय गॉड, लैंड में अहमदाबाद में जो एप्रिशिएशन है वो सुपर एप्रिशिएशन है, सुपर एप्रिशिएशन है. तो मतलब ये थोड़ा, ये हमारी तरफ से कोई बैंक में जो सेविंग कर दे, ये हमारी तरफ सेविंग था. लेकिन सेविंग आ गया, 1,000 रुपये की जो लैंड होगी वो लाख रुपये हो गई. क्या बात है. सो 100 टाइम. तो मतलब ये हमको यही लगा, पर धीरे धीरे सो डेवलपमेंट का प्रॉफिट आपको छोटा लगने लग गया. छोटा भी लगने गया, और वैसे भी अहमदाबाद में प्रॉफिट कम हो गया. अच्छा, कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के चार्जेस के हिसाब से, रेट बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ने के कॉस्ट बढ़ हिसाब से. और दूसरा ये है कि बॉम्बे में लैंड है नहीं, वहाँ तो खुली लैंड तो बहुत है. तो मतलब इसमें क्या है कि लैंड का एप्रिशिएशन रहता है, वहाँ फ्लैट का नहीं रहता है अहमदाबाद में. तो उस तरह से हम आ गए और वहाँ से स्टार्ट किया. तो मतलब अभी इतनी सारी लैंड बैंक है, लेकिन इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ ये लैंड का जो रेट है, 10 साल के बाद ये होगा, 5 साल के बाद ये होगा, 3 साल के बाद ये होगा. इतना आपको इतना तजुर्बा आ गया और confidence, कॉन्फिडेंस आ गया confidence. कि अभी आप लैंड के प्राइस पॉइंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. दैट्स अ वेरी नॉवल वे ऑफ थिंकिंग. मतलब इन्होंने सिप किया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लेकिन इन द म्यूचुअल फंड्स में करने के बजाय उन्होंने जमीन में किया, जमीन पे किया. और जो मल्टीपल्स मिले हैं, क्योंकि जमीन तो कहीं उड़ के जाने नहीं वाली है. और इट इज नॉट पेरिशेबल. और राजेश, जमीन इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट. यस, वेरी सेफ. यस, यस. म्यूचुअल फंड में तो ऊपर नीचे रहता है, शेयर बाजार में ऊपर नीचे रहता है, गोल्ड में भी जमीन में जमीन सिर्फ सिर्फ ऊपर जाता है, कम तो होता ही नहीं, ज्यादा खाली टेक ऑफ ही है, लैंडिंग होता ही Landing नहीं. एक्सीलेंट. तो So well 35 साल said. पहले हमारे ये जवान दोस्त हिंदुस्तान छोड़कर परदेश गए, एंड दैट टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मेरे ख्याल से सावन आप 1993 में गए. 93 में. तो फ्लाइट में जब आप पहली बार बैठे, हाँ. तो उस टाइम पे दिमाग में क्या बातें चल रही थी? बस दिमाग में जो मेरा डेस्टिनी था, मेरे फैमिली पूरी यूएस, माय मदर साइड फैमिली वाज इन यूएस. सो पहले से ही मैं छोटा था, एक दिन मेरे को यूएस जाके सेटल होना था. सो मेरा एम था पहले से, आई वांट टू सेटल इन यूएस. सो आई वेंट एंड इट वाज अ वेरी positive way I went over there. We just went from here with the 2 pair of clothes, nothing much in my hand. Wow. And I started my journey over there to get to be there where I want to be right now. एक्सेलेंट. तो शुरुआत के जो डिफिकल्टीज आए होंगे या एस्टेब्लिश करने के लिए, जो जिसको हम कहते हैं लाइफ में जेस्टेशन पीरियड या बिजनेस में जेस्टेशन पीरियड, Right. तो सेटल होने के लिए आपको कितना समय लगा? क्योंकि आप तो बहुत तेज एंटरप्रेन्योर हो, Right. आपके अंदर तेजी है, तो और- कितने जल्दी आप कन्वर्ट हो गए एक और- सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर? दूसरा, स्टार्टिंग में क्या क्या स्ट्रगल किया था? हाँ. I think I done it lot of labor job. ओके. In the morning, I was throwing the newspaper. 6 o'clock in the morning, I wake up and
to the newspaper. I finished that job 9 o'clock, and 9 to 5 I was working in farmers market as a cashier over there. So that's how I during that period I learned how to behave with the foreigners and Americans, and their food, their vegetable, what they eat, how they prepare the food. And so I learned during that my period to just be a cashier over there, because it's like thousands of items go through my cash register, and I have to ring it In up the stores. in the store. In the stores. Okay, and once I done my 5 o'clock job over there, 7 o'clock I went for the pizza delivery. Oh, So I was doing my pizza delivery. So that I done it for 1 year. I made good money. I saved some money, and out of those savings, I bought my first business over there, American chain called Philly Connection. अच्छा. They ठीक were है. just like a Subway over here, Okay. but it's a very grown franchise during 90s and 2000. So आपको एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने का समय कितना लगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना समय लगा? 1 साल, 1.5 साल, 1.5 1.5 साल. मतलब आप पहले से बचपन से तेज थे. Yes, आज तो आप जेट के स्पीड से चलते हो, लेकिन तभी भी आप तेज थे. yes. सर मैंने सुना है कि तेरे को कार का शौक बहुत ज्यादा है, तो कौन सी कार है तेरे पास? अच्छा. गाड़ियां तो इतनी आज तो है सब कि- कुछ आया होगा. नहीं, गाड़ियां तो इतनी है कि अगर ये बंबई में रहते, इंडिया में रहते, तो शायद हर महीने इनकम टैक्स रेड होती. 2 जोड़ी कपड़ों में गया था, लेकिन अभी गाड़ियां कपड़ों की तरह खरीदता है. What a success story, man. That is a fantastic success story with a very positive zeal and 3 will. jobs in a day. 3 jobs in a day. कौन सी कार है तेरे पास? I have every car. I have Mercedes, Rolls-Royce, Tesla. सो इनके गाड़ियों के कैटेगरी के ऊपर मुझे बाद में आना है, क्योंकि इनके गाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है. अच्छा. मुझे तो उनके सारे किस्से मालूम है. 20 साल से अटलांटा जा रहा हूं मैं, तो वही किस्से बताऊंगा जो लोग जान सकें. Right. बहुत साल पहले जब 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है, तो देश में दिल्ली में परेड होता है, परेड. और मुझे वो परेड देखने का बड़ा शौक था टीवी पे. और उस जमाने में देयर वाज नो नेटफ्लिक्स, देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नथिंग. लोग सिर्फ टीवी पे कंटेंट देखा करते थे. और ऐसे ही एक दिन जब मैं परेड देख रहा था, तो मैंने बहुत सारे जान पहचान के लोग देखे. अभी वो जान पहचान के लोग कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इनको तो सभी लोग पहचानते थे. लेकिन उनमें से जब कैमरा घूम रहा था, तब मैंने और एक व्यक्ति को देखा उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए. ना वो तुम थे, ना वो संजय ठक्कर थे, ना वो मैं था. तो बचा कौन? प्रमोद राव. You saw that, huh? तो वो प्रोग्राम मैंने देखा था, और आज भी मेरे जहन में वो शॉट और वो सीन है. और तब से मेरी इज्जत मल्टीप्लाई हो गई इनके लिए, क्योंकि वहां तक लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप किनके साथ बैठ सकते हो और किनके साथ आप दिख सकते हो, ये बहुत मायने रखता है. तो दैट इज प्रमोद राव. और देश को उन्होंने एक कंपनी प्रदान की जिसका नाम था जायकॉम. और जायकॉम इस देश का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कैमरा मॉनिटरिंग जो हम लोग करते ना, तो उसकी शुरुआत प्रमोद राव ने की थी. सो प्रमोद, हाउ हैज द जर्नी बीन? मतलब यू आर द इनोवेटर इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. आज सैकड़ों कंपनीज हैं, लेकिन आज भी लोग जायकॉम ये शब्द भूल नहीं सकते हैं. सो हाउ हैज द जर्नी बीन एंड व्हाट मेड यू स्टार्ट जायकॉम देन? So the journey is very exciting, and the journey was more like a roller coaster, high lows, because we in 1993 Bombay had a lot of bomb blasts. So बहुत सारा, I think around 7-8 bomb blasts we had, including the stock exchange, if you remember. yes. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि why don't we get into security, because वो बहुत बड़ा मार्केट होगा. So in exactly 1 year after that, in 94 we got into electronic security, और मैं आपके देश में आया. Because US had a big market for security. अब मुझे अभी भी याद है when I first went to US to ask for security system, जिसको मैं मिला वो मुझे से 3 सवाल पूछा. एक वो बोला, इंडिया इतना गरीब नेशन है, इसमें क्यों सिक्योरिटी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर पुअर कंट्री, व्हाई डू यू वांट सिक्योरिटी? सेकंड, ही सेड आपको तजुर्बा नहीं है. एंड थर्ड क्वेश्चन वाज मोर इंटरेस्टिंग, बोला आप मेरा नाम खराब करोगे. तो मैंने बोला आपका नाम तब खराब करूंगा जब आप वहाँ पे पीपल नो यू. If you're not famous, how can I spoil your name? Second, I don't have experience, but you're not going to give me anything free, right? And whether my countries of snakes, elephants, buffaloes, whatever it is,
in India, you watch and see in next 20-25 years, this is going to be the biggest market of security. And luckily, you have been proved right. Today, a panwala also puts camera. In 95, when we bought cameras, nobody wanted it. लोगों को बोलते क्या फायदा? Because it's only recording a crime. It is not preventing a crime. Yes. तो recording करके क्या करना है हम लोग को? Rajesh, to be very honest, there has been a sea change in the way this industry is working. And lately, with AI coming in, a restaurant like yours can do so many things using AI now. So it's been a very Artificial intelligence के मदद से हाँ, you can yeah, take yeah. business decision making. absolutely, and everything like about a restaurant, how a restaurant functions, it can identify and really help build your business to the next level. And the last thing I want to tell you was, during my course of my journey of Zycom, we were, it's a concept. We went so many times bankrupt. ऐसा लगता था कल अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे. So that's a very exciting part of an entrepreneur's life, If it's a straight line, मजा नहीं है. So It's I a really, dead man. It's like the ECG. So वो ऊपर नीचे होगा तो ही जिंदा रहेगा. I'm sure all of us have our own. Yes. Like he just spoke about his journey. Absolutely. He spoke about his dad and what he did. So we all have very exciting, things to tell. So 93 के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हिंदुस्तान में हुए बम्बई में, और उस समय जब लोग एक अलग माहौल में जी रहे थे, उस टाइम पे आपने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि आने वाले सालों में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला होगा और उसको आपने एनकैश कर दिया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में. दैट इज हाउ यू स्टार्टेड. Absolutely. तो ये इंट्यूशन था, गट फील था या डेटा एनालिसिस था उस समय पर, ये समझते हुए कि इस चीज का डिमांड बन सकता है? I have truly believed that all entrepreneurs have one special quality in them, which is the gut feel Okay. and the instinct. आपको भी है ना सर? Yes. Correct? आपको भी है ना? So we actually work on our instinct and gut. क्या ये चलेगा? Then of course we have to go through the reality, because perception and reality में बड़ा gap होता है. मैं सोचता हूँ कुछ और होता है कुछ. So I also went through that, Rajesh. But most of the time, my business success has only been because we took a right call. और मैंने जो भी मैंने business life में शुरू किया, starting from fax machine and security system, I always done businesses by looking at daily life events. क्या अगर आप कुछ चीज देखते हो, लगता है आपको इससे बिजनेस बना सकते हो, तो वैसे शुरू किया. वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो बिजनेस बन गया. So that's been my forte. So the best part about conversations is when you have got very interesting, intelligent food along and सांते का खाना है तो जो भी खाओगे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप lethargic बनोगे या lazy बनोगे. That is the reason for the freshness and the combination of the food. So हम तो पी रहे हैं. This is called the ABC juice. पूरी दुनिया जानती है ABC is a very common juice. लेकिन this is the activated charcoal. जो संजय ठक्कर पी रहे हैं और सावन शाह जो पियेंगे, that is called activated What charcoal. is this now? Activated charcoal is something very interesting जो मेरे ख्याल से आर्यन बता सकेगा. Yes, sir. So this is like a water, lime juice, and we use the Khansari in it, which is like a raw sugar, and we use the activated charcoal powder, which is good for your skin, good for your immunity. Really? Yes. So activated charcoal is good for your skin, good for your immunity, and it's a combination of multiple ingredients which makes it different and special. Okay. So let's that's going to keep us cool in this summer. And ये जो आपको सर्व किया जा रहा है, that is called coconut cracker. This is nothing but tender coconut malai, coconut water and coconut milk, which is topped with roasted almonds, coconut and oats. तो गेम है सिर्फ इतना ही. What business you do is immaterial. How you do your business matters the most. और ये जो सीक्रेट फॉर्मूलाज होते हैं ना, कॉम्बिनेशंस, इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग बिजनेस में डिसीजन के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये अगर बढ़िया रहेगा तो उसका मजा अलग आता है. Sure, Rajesh, since you spoke about entrepreneurship, I've always believed that a good entrepreneur, who is a good entrepreneur? I'll define it in one line: whose height of his ambition, whose depth of his conviction, and the breadth of his confidence is a real entrepreneur. तो आप कोई भी बिजनेस करना, आपका एम्बिशन होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Absolutely. That actually defines a good entrepreneur. You agree? Fantastic. Absolutely agreed. और अगर मैं आप तीनों के चेहरों पे देखता हूँ, तो जो आपने बोला ना, ये कूट कूट के भरा हुआ है. आपके चेहरे में हम तीनों का भरा हुआ है. सो रियल एस्टेट अपने चैलेंजेस रखता है. बम्बई का चैलेंजेस अलग हैं, शायद अहमदाबाद के चैलेंजेस अलग रहेंगे. तो ऐसे कौन से समस्याएं थी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में अहमदाबाद में, जिसको आपने देखा और आपने बहुत एक अलग तरीके से उस चैलेंजेस को सॉल्व किया या मैनेज किया? इसमें कंपटीशन नहीं थी. जो वेस्टर्न साइड जो काम करते थे, हाँ वो गिने चुने 10-15 बिल्डर थे. हाँ.
और वहाँ का प्रॉफिट लेवल, माय गॉड, इतना अच्छा प्रॉफिट लेवल था, कंपटीशन नहीं थी। एफएसआई कम थी, 1 2 3 फ्लोर, फिर एफएसआई बढ़ी 1 2 3 4 5, फिर 7, फिर 11, 13, एंड अभी तो 33 फ्लोर आ गया है। मतलब जो प्लॉट में 3 स्टोरी बनता था अभी 33 स्टोरी हो गया है, इतनी एफएसआई इंक्रीज हुई है। उस हिसाब से कंपटीशन हुआ, लेकिन उस टाइम कंपटीशन भी नहीं था। बोर्ड लगाते थे, इन्वेस्टर आ जाते थे, और इन्वेस्टर भी हमारी गुडविल देख के आते थे। हमारा जो पहले जो आगे का जो काम किया है वो देख के इन्वेस्टर आते थे, और लोग पैसा वही वही डालते हैं। मतलब ये, चलो ये बिल्डर ने पुराना स्कीम इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो इसमें हम पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब ऐसे 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 बोर्ड लगाते बुक हो जाता था फटाफट। दूसरा, एक एक साथ में मेरे 9 स्कीम चल रही थी, 9 प्रोजेक्ट एक साथ में। और एक प्रीतम नगर का जो एरिया है वो मेरे को बहुत प्रिय था। पूरा जैन, 4-5 जैन मंदिर से बड़े बड़े प्रीतम नगर में। और वहाँ जो प्लॉट जो था वो छोटे छोटे प्लॉट थे, 1000 गज, 1200 गज, 1500 गज का प्लॉट था, स्क्वायर यार्ड का। लेकिन वहाँ जो बोर्ड रखो, फर्स्ट डे बुकिंग। तो इसमें जो काम करने की जो मजा थी वो अलग ही थी। तो शुरुआती अभी दिनों थोड़ा में- कंपटीशन हो गया है। शुरुआती के दिनों में हाँ। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हम्म। उसमें से सबसे बढ़िया, आसान और एकदम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा था और क्यों इतना प्रॉफिटेबल था? मेरा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सिटी में था, ओके। इन द डाउनटाउन हम्म। सिटी में। बहुत डिफिकल्ट था। वहाँ मैंने 1100 शॉप बनाई, वो भी 11 महीना में कंप्लीट किया। 1100 शॉप, वो भी 11 महीना में बिल्डिंग कंप्लीट आपने किया। 11 महीने में पूरा 11 किया? महीने में बनाई। हम्म। और वहाँ प्रॉब्लम ये था कि वहाँ जो ट्रक है वो डे टाइम में एंट्री नहीं थी, रात को ही एंट्री थी। रात को भी अंदर कोई ऐसे कि प्लॉट के अंदर तो कोई पूरा ग्राउंड नहीं था, रोड पे सब खड़े रखते थे। फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वो डोंकी गधा जो होता है ना, हाँ। वो उनकी टीम आती है, फटाफट रेती भरते अंदर डाल देते थे, और सुबह में काम होता था। लेकिन फास्ट काम किया था, बहुत फास्ट काम। और वहाँ का जो मैंने जो प्रॉफिट देखा, माय गॉड, बेस्ट प्रॉफिट वहाँ था। वो ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की। तो क्या मैं 20 साल पहले। ऐसा कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट में जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा प्रॉफिट? अभी नहीं है, अभी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तभी बहुत था। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा प्रॉफिट। उतना प्रॉफिट। नैरो रास्ता, स्टोर करने का सामान नहीं, वहाँ आधी तो रात को काम करो। कपड़े मार्केट, पूरा कपड़ा मार्केट है, 1100 शॉप, पूरा कपड़ा मार्केट। सहजानंद मार्केट, आनंद शॉपिंग सेंटर, वृंदावन और सहजानंद, मतलब जो बाजू बाजू में शॉपिंग सेंटर सबसे बड़ा मेरा है। क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते थे? No, I was telling him that it needs guts to do a project like that. Yes, with limitations. And that too, look at the way he said just now, 1 year he finished it now. It's unimaginable, and that too in a very constrained place. 1100 दुकानों का जो कंस्ट्रक्शन आपने किया, ये कंस्ट्रक्शन आपने भले 11 महीने में कर दिया, 12 महीने में कर दिया, 1 साल में कर दिया, इसकी प्लानिंग में कितने महीने गए? काम शुरू करने के पहले कितना समय लगा? क्योंकि रियल एस्टेट में कैसा होता है, जैसा फाउंडेशन होता है ना, जो जमीन के नीचे दिखता नहीं है, वैसे लोगों को प्लानिंग कितना टाइम से चल रहा है ये समझता नहीं है। 20-22 साल पहले ये प्रॉब्लम थोड़ा कम था। हाँ। म्यूनसिपालिटी में प्लान रख देते थे, तो म्यूनसिपालिटी जो मतलब उनके जो मतलब इसमें हो जाता तो फटाफट पास कर देते थे। आज मैंने जमीन का डॉक्यूमेंट किया तो 3 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया विद प्लान प्लास। और कंस्ट्रक्शन में तो ऐसा होता ना कि ये पिक्चर बनाने जैसा है, आपका एक्टर सही होना चाहिए, डायरेक्टर सही होना चाहिए, कैमरामैन सही होना चाहिए। उसी तरीके से आप बिल्डिंग अगर आपने 1 साल में पूरी की है तो आपने चुना होगा ना, सही आर्किटेक्ट चुना होगा, सही कॉन्ट्रैक्टर चुना होगा, सही आरसीसी कंसल्टेंट चुना होगा, सही सेल्स की टीम चुनी होगी, सेल्स टीम, मार्केटिंग, लाइजन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप अच्छे चॉइस वाले इंसान हो? नहीं, देखिए बिजनेस के अंदर इसमें ऐसा है, रिसोर्स मैनेज करने के लिए आपको अच्छे चॉइसेस करने पड़ेंगे ना रिसोर्सेज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब जो ये देखिए इसमें क्या है, एक दुनिया की एक मेंटालिटी है। सब लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत करो तो फिर आप प्रोग्रेस करेंगे। देखिए हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, उनको 700 मिलता है पर डे। उससे आगे जाए तो वो कड़िया, गुजराती में कड़िया बोलते हैं, तो वो जो कोई काम करते थे उनको 1200 रुपया मिलता है। उसके आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्क्वायर फीट में पैसा ले लेता है,
कॉन्ट्रैक्टर, और उसके आगे होता है बिल्डर आता है ऊपर। बिल्डर कुछ नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है, और बाकी सब काम स्किल, जो अच्छे मतलब जो स्किल वाले जो लोग हैं ना, वो लेके जो करते हैं वही बिजनेस है। और मैं तो यहाँ 5-6 बजे साइड खत्म हो जाए, मैं तो 5-6 बजे घर पे चला जाता हूँ, लेकिन कोई टेंशन वाला काम नहीं और कुछ भी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम छोटा मोटा होता है वही सॉल्व करने का होता है, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता है पैसा। जो मतलब गद्दा मजूरी करते हैं उनको पैसा इतना नहीं मिलता है। अब सोच समझ के काम करो, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्क। मेहनत तो लगेगी उसमें भी, काम करना पड़ता है उसमें लगे, भी। वो डिफरेंट मेहनत लगेगी, स्मार्ट थिंकिंग, different। स्मार्ट मतलब वर्किंग। तो इसमें जो मतलब जो मिलता है, माय गॉड। बहुत सारे लोग हैं ना, But how expert हो does जाते one हैं। how does one decide to buy his building or somebody else's building? Because ठीक है, amenities थोड़ा फर्क हो सकता है, डिजाइन में थोड़ा फर्क हो सकता है, पर how do they say ये बहुत अच्छा बिल्डर है, ये बुरा बिल्डर है, ये ठीक ठीक है? How do they differentiate that? ये देखिए, एक बिल्डर क्या करता है, टाइटल क्लियर नहीं होता है, वो लैंड में स्टार्ट कर देता है, किसी का पैसा ले लेता है, टाइटल क्लियर होता नहीं है, बिल्डिंग बनता नहीं है। दूसरा ये है, टाइम पे पोजीशन नहीं देता है, डेट कमिट किया उस दिन को। कमिट करना चाहिए। और वो भी, दूसरा है क्वालिटी है, तीसरा है इमेज है, उनकी इमेज कि क्वालिटी वो तो मेंटेन करेगा, तो ही मतलब उसको प्रीमियम मिलता है थोड़ा। प्रीमियम मिलता है। So building construction line is a very complicated subject when any part of the world. It's not only Mumbai में अलग है, अहमदाबाद में अलग है, challenge level सब जगह same है. We do a lot of development to we understand that we are aware about that. Who knows it better than you? So Sawan was in US and for everybody's information, Sawan is also into real estate in Atlanta. Really? Yes. But he's a buyer. He's not a developer. वो डेवलप नहीं करता है, वो खरीदता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, पेट्रोल स्टेशंस। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इंडियंस यूएस में नहीं रहते तो हम लोग को कोई दूसरे देश को यूएस के अंदर तकलीफ देने की जरूरत नहीं थी। सारे इंडियंस ने अगर पेट्रोल स्टेशन बंद कर दिए तो ऐसे भी हॉर्मोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी को भी ऑयल नहीं मिल सकता, पेट्रोल नहीं मिल सकता। मोस्ट ऑफ द गैस स्टेशंस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियंस, मोस्ट ऑफ द गैस स्टेशंस। तो मेरे ख्याल से सावन ने जब शुरुआत की स्टोर्स लेने के बारे में या गैस स्टेशन पुटअप करने के बारे में, तो ये क्यों किया आपने? बिकॉज इट इज एवरीडे मनी, कैश पैसा, क्योंकि रियल एस्टेट में तो रोज पैसा आता नहीं है। Right. महीने में 2 बार 3 बार 5 बार 8 बार आता है, लेकिन गैस स्टेशन में और डिपार्टमेंटल स्टोर में तो एक Every दिन minute में आता है, हर मिनट पैसा आता हर है, मिनट पैसा हर आता है। मिनट पैसा आता है। So when I was doing my restaurant, it was a learning experience. How do I do my taxes? How do I run my business? So I learned those two for 2-3 years to learn the system because I was fairly new over there. And then what I bought it for, I booked the profit. The buyer come, I sold it for 2 reasons. During that time I grown my family. I have 2 kids that time, so I want to take a break and give some time to my family, and then reconsidering the getting in the different business. So I sold it, and I spent quite big, like 2-3 months with my family, took some vacation, and during that time I was start looking for the business. And the next thing I went to is my gas station business. And I started gas station business back in 1999. And the first gas station, I got very good location. It wasn't doing good business. But with my experience on the restaurant, with the customer service, I extended the hour for the gas station. It was used to be only 18 hours a day. I done it 24 hours. I was very comparable with my gas prices, so I attract the people to come to my gas station. So unlike India, in US you have got the freedom to price the fuel separately, right? That is right. Yeah. You have got the power to, pay with the So price how do you points. compete with Costco's pricing? We can't compete with the Costco's price because they're buying in bulk, and Costco is basically a wholesale place. Yes. They have a less profit margin, but they have volume. over Volume, there. yeah. Yes, That's their model also. that's their model. Yes. तो मुझे ऐसा लगता है you work on the concept of convenience. जिन लोगों को, इसलिए वो तुम्हारे स्टोर्स के नाम भी convenience stores होते हैं ना? Convenience stores. Yes. So जिसको वहाँ पर कॉस्को तक नहीं जाना है, हाँ. बिकॉज कॉस्को एक लोकेशन पे एक जगह पे होगा, जैसे आइकिया बम्बई में एक ही है,
नवी मुंबई में आज तक मैंने देखा नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं Even I have not gone there. not convenient for them to go to Right. IKEA. Similarly, मेरे convenience stores local population के ऊपर Local काफी चलता है. population neighborhood store, which is you get one stop, you get gas, grocery, lottery ticket, any smoking product, soda, Coke, Thumbs Up, everything. You know, I mean, what daily base is needed to run very close by to the convenience store and get it for their house. और मुझे ऐसा लगता है बिजनेस में जो तुम्हारा जो बिजनेस है उसके अंदर जो आपका जो पेट्रोल स्टेशन है दैट इज द हुक, Yes, दैट इज द फुटफॉल क्रिएटर. yes. मतलब वो फुटफॉल क्रिएट करता है तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो हो गया और जो आता है वो फ्यूल भी भरता है और सामग्री भी खरीदता है. Yeah. उसका फिलिंग भी करता है. होम रिक्वायरमेंट. Fuel business, it's not necessary all the time you make money out of the fuel, ओके, but that is the catch to get your more customer दैट इज द हुक. to get it in your store. So sometimes we make money on gas, sometimes we don't, but we have to compete with the other neighborhood store to be staying in competition to get aggressive gas price. सो हम लोग सब लोग है ना सक्सेस स्टोरीज के बारे में बहुत जानते हैं. बहुत सारे लोगों की हम लोग सक्सेस स्टोरीज जानते हैं. प्रमोद, व्हाट वाज योर अर्ली फेलियर व्हिच टॉट यू समथिंग और जिससे आप वापस जंप बैक टू बेटर देन बिफोर? So first of all, when I got into entrepreneurship, I said I should embrace failure यस. because entrepreneurship So you is not. manifested for failure or failure happened? No. I didn't manifest anything. I just told myself that listen, failure and success are part of a same coin. Yes. Two sides of a same coin. Also, failure is not a bad word. You know, failure. If you keep your enthusiasm, you reach success. Because to reach success, you have to go through failure. You just can't go to success. He's very lucky that way. But all are not lucky as in. And look at his story. I mean, he's worked so hard for that, right? So each one has a different story. So coming back to failure, I learned more lessons in my life through failures than through success. Because failure teaches you what not to do. Success tells you how arrogant you are and how you should be brash. So failure, it's like an accelerator and a brake. So success is accelerator and failure is a brake. So these both are required in your life. And So that no failure ever broke you. uh, It made you stronger. Now, I would be lying if I said that. So there have been moments of depression, there have been moments of anxiety and all that stuff. But any entrepreneur, I think, knows that the failure is never final, nor success is ever final. They're only in motion. So it's up to you now what you want to do with it. It's like a boxing match. You knock it down, you fall down, again you stand up. You box, you again hit, you go back, you stand up. It is the number of times you come back, then rather than staying in the ground and saying, okay, that's enough. Ho gaya. So that's not at least my trait. I like to fight it out and I've always been doing it. Like Sanjay Bhai just said that money is not always everything in life. So my mother told me a very beautiful story. She said, you know, son, when you start your entrepreneurship journey, there'll be 3 women in your life. So there'll be Lakshmi. So don't run after her. And then there'll be Saraswati. Run after her because knowledge will bring money to you. Like he spoke about knowledge, right? And he also spoke about it. And the third is your wife. You can't avoid her. So these 3 women will be in your life. So I started running after Saraswati and not Lakshmi. It has paid off sometimes. It hasn't paid off sometimes. But Rajesh, end of the day, we have come empty-handed. We are going to go empty-handed. So I'm very content with what I did. Excellent. It's all about brand and brand creation. Like for example, you created Zycom into a world-known brand and very popular brand in India. And brand बनाना एक तपस्या की कहानी होती है. Absolutely. So what are your learnings as a brand that you created in the form of Zycom? So the first thing is I realized that people don't buy products, they buy brands. Yes. Right? That's the first thing I learned. Second, I learned in a business of security, trust is a very critical area. So if there is no brand trust, if there's no brand, then people will not buy your product. So I focused on the trust by creating a brand. The third thing was brand brings a natural pull towards higher premium prices. So if I have a brand, people are willing to like he's got a good builder, he's got a good brand, people are willing to pay him a premium, right? Same with me. I thought if I got a good brand, people will give me the premium.
And the last but not the least was, I believe brand creates a legacy. So I wanted to create a legacy. Right? Today Zycom is not in the market, but still there's a legacy. Like we have Campa-Cola, we have Fiat, we have Ambassador. They are legacy brands, right? So hopefully one day when it comes back, this brand will be remembered. So that's my forte. That's what I thought I should be doing. And I guess we have been quite lucky to do that. So Savan, Yes. you started this journey 35 years back. Yes, I think you just finished your graduation in India and you moved towards the US. that's right. Almost the same time. No, I have In left my 1993. education over here, Okay. and then I left because middle of my diploma degree, I left. Okay. And you went on to the US. Yes. What is it that would have happened if you would have stayed back in India? What would have been the growth story if you would have been in India? Because आप हर साल हिंदुस्तान आते हो, कभी कभी दो तीन तीन बार आते हो, Right. तो आपको यहाँ के भी सारे रवैये मालूम ही है. Right. How do you compare these two countries in terms of comfort of growth, business growth? Well, business growth. I never done it any business in India, but I do have a little bit knowledge. What is the difference between US and India? US, you decided to buy something. Thank You you. have to go to the proper things like get the paperwork done and officially like deed and property get in your name, and then you get a mortgage on it, and it's on system. But willing to do that over here, that time bank was so tight and the interest rate was so high in India. Recently, last 10 years, interest rate getting compared to the what US have, not even close. So those margin, those different will bring lot of your overhead is less, and then your mortgage payment is less, which is will help you to make more money. Excellent. So they were very bold and liberal with giving money to entrepreneurs who wants to risk into business. Where that Not is not that conservative. easy. Not conservative at all. Not at all. It's not that easy. You have to have your good credit score, your history, to how you performing in your. So your reputation is the initial capital which attracts more capital. That is true. Beautiful. That is true. Well said, Rajesh. Yes. Excellent, excellent, excellent. And if you go back to Sanjay Thakkar, he also does development in the United States of America, in Charlotte, if I'm not mistaken. Oh, really? Yes. Oh, in that's Charlotte. that's a इसके revelation. पीछे के आपके विचार क्या थे? मतलब ऐसे आप जो इंडिया में कर रहे हैं वही चीज आप यूएस में करने चले गए, इसके पीछे कुछ तो विचार होगा. Was it related to risk mitigation? लोग कहते हैं ना सारे आम को एक टोकरी में नहीं रखना है, सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं डालना है. इस वजह से आपने पैरेलल एक बिजनेस स्ट्रीम बिल्ड की. बहुत मेरी डॉटर वहाँ थी, ओके. शादी करके वहाँ गई. इसी काम के लिए वहां पर भेजा गया था या कुदरती गई वहां? शादी उससे शादी हुआ के फिर मेरे पास ग्रीन कार्ड आ गया और 6 महीने में जाना पड़ता था. ओके. तो बेटी के वहाँ रहो तो वो छुट्टी ले लेते हैं, फिर हमारे पीछे पीछे घूमते. तो मतलब ये हमको ऐसा लगता था. और वैसे भी मेरे को वहाँ इन्वेस्टमेंट करता था. और ये आपने जो बताया वो सही बात है कि सब पैसा यहाँ नहीं रखना, थोड़ा स्प्लिट करना है. मैंने दुबई भी बहुत अच्छा देखा, लेकिन वहाँ मेरे को यूएस में मेरे को पैसा बहुत सेफ लगा. अच्छा, यूएस में तो आपने सेफ्टी देखा, और ग्लैमर के बजाय सेफ्टी देखा. सेफ्टी एंड हाउस. मैंने हाउस लिया. राजेश में एक ये किस तरीके से क्या होता है कि कौन सी तरह, ये बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में मैंने तेरे को बताया था कि मुकेश अंबानी का बेटा जो आकाश है वो वहाँ पैदा हुआ, मतलब मुकेश के वहाँ. और रोड पे भी जो जन्मा है लड़का, रोड पर जो पैदा हुआ, अरे ये भी है इंसान है, वो भी इंसान है. करेक्ट. कितना डिफरेंट क्यों है भाई? क्या क्या डिफरेंस? डिफरेंट, कितना डिफरेंट है. बीच में भी बहुत सारे आते हैं स्टेज. और मैं समझता हूँ कि मुकेश अंबानी से भी ज्यादा स्मार्ट उसके चौथे पांचवें छठे लेयर का आदमी होगा, वो स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा वो. तो क्यों ऐसा होता है? ये सब राजेश, सब कर्मा है. जो आप जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही भुगतते हैं, चाहे ये जन्म में चाहे अगले जन्म में. ये ऐसा तो नहीं है ना कि आदमी फिलोसफी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बोलना शुरू करता है? नहीं. ये मैंने बहुत देखा है. मैंने बहुत देखा है. दूसरी बहुत सारी चीज आती है. एक ऑनेस्टी आती है. बिजनेस में हमेशा ऑनेस्टी होनी चाहिए. ये जो ऑनेस्टी नहीं है, Honesty is the key. तो फिर मतलब एक बार आएगा और
उसको जो मतलब अच्छा नहीं लगेगा तो आएगा नहीं। नेचर अच्छा होना चाहिए, जो मतलब जो पार्टी के सामने बैठे हैं तो उनको भी फैमिली मतलब होमली लगना चाहिए। और हंसता मुंह मतलब ऐसे वैसे जवाब दे दो, ये दे दो नहीं, प्रेम से उसको लेकिन satisfy संजय आज तो है ना टेक्नोलॉजी ने पूरे दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। अभी ऑनेस्टी एक क्वालिफाइंग फीचर नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट बनना जरूरी है, नहीं तो सबको पता चल जाता है। तो चल देता है। तो ऐसे समय में अगर हम लोग ऑनेस्टी, तो अभी एक एटीट्यूड ऐसा है कि वो टेक इट फॉर ग्रांटेड किया जाता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, हाँ, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा, पता क्योंकि एक पता आदमी चल कोई भी एक जाएगा। पोस्ट डाल देगा, हो जाएगा। ये गड़बड़ है। हम्म। सो आज के समय में आप ऑनेस्टी एस्टेब्लिश कैसे करोगे? आपके समय में समझो इतने साल पहले जब आपने देखिए, कंस्ट्रक्शन शुरू किया तब आप कर सकते थे। पहले से मैं हमेशा, मेरा नेचर है ना 1000% पॉजिटिव नेचर है मेरा, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा हो जाएगा। और ये मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं ये कैसे कर सकता हूँ मैं सोचता हूँ। जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम को नहीं देखता हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तो इसके भी जो पीछे लग जाओ तो क्या प्रॉब्लम। पॉजिटिव नेचर है। और आप कर्म में मानने वाले व्यक्ति हो, बिल्कुल, कर्म करो, कर्म 1000 फल की चिंता मत करो, ऐसे जो कहते हो सही है आपके मामले में। एग्जैक्टली। और कहीं में आपने कुछ बहुत सारे लोग है ना कर्म कर करके फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको सक्सेस ही नहीं मिलती। नहीं मिलते। मैं बताऊँ उसका जवाब, राजेश इसका जवाब है मेरे पास। तू सुन, आज कर्म करो आज फल मिलता है, ऐसा नहीं होता है। तपस्या करनी पड़ती है। अगले जन्म में भी मिलता है। आम का पेड़ लगाओ, आम का पेड़, तो आम कितने साल में मिलती है? 4-5 साल में। तो आपके पिछले जन्म का कर्म आपको वो अभी भी हो फल सकता देगा। है और ये भी हो सकता है, आज का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, लेकिन कर्म के सिवा कुछ भी नहीं। राजेश ये ना मेरा वर्ड तू आप लिख ले, मतलब ये इसमें ऐसा होता है ना कि जब कुछ भी आप लगाओ, जैसे बीज बोएंगे ऐसा पेड़ उगेगा और ऐसा ही फल आएगा। सावन, आपके क्या विचार है इन बातों में? I totally agree with him. The honesty is very important in the business. कॉन्वर्सेशन में अगर आप अग्री करने लगोगे ना तो कॉन्वर्सेशन में मजा नहीं आएगा। चलो सुनो आपको चैलेंज करना जरूरी है। सुनो, दूसरी मैं बात बताऊँ। हर बिजनेस में हम जो स्टार्ट करते हैं, बीच में आते हैं कि जब मैं जहाँ पहुंचा हूँ वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मतलब होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मतलब ये मैं कर पाऊंगा, ये हो महात्मा जाए। गांधी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई तो उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। सो करेक्ट। ठेस लगना भी जरूरी है, इंसल्ट होना भी जरूरी है। That is true. इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है और आदमी की जिद मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जैक्टली। और बिहेवियर तो होना ही चाहिए, मतलब जो जैसा अच्छा बिहेवियर होगा, तो मतलब सामने वालों के चल के चलो संजय भी के वहाँ बैठने जाते हैं, कुछ बात होती है, बिहेवियर अच्छा ना हो। बरोबर है। लोग कहते हैं दैट यू बिकम व्हाट यू ईट। That is true. बराबर है ना? जैसे अभी हम लोग ने बुराटा सैलेड खाया Same था। thing, बुराटा सैलेड क्या था एग्जैक्टली मालूम है आपको? इट इज कॉल्ड एज बुराटा ऑर्चर्ड सैलेड। मतलब इसमें चेरी, बेसिल, एलोवेली ऑन वाइल्ड लेट्यूस है, काला मीठा ऑलिव्स है एंड बटर्ड प्रोसो मिलेट पाने हैं। मतलब अगर nice, किसी को very इंग्लिश सुधारनी है तो उसको खाली सांते का मेन्यू पढ़ने देना चाहिए। So, क्योंकि कभी कभी ये डिशेज ऐसे लिखे रहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो लेकिन फ्रेंच सुनाई देगा। right. करेक्ट। बट वही तो खासियत agree है, with you. you have to be different in the I'm adding market. one more thing. Even what kind of food you eat, you think that way too. Yes. Which Yes. is like an example, you eat so much spicy, your body get kind of lot of heat in your body. Then your thinking gonna be like very तो अच्छा भोजन खाओगे तो वजन तो कम होगा ही, लेकिन विचार भी अच्छे विचार आएंगे। भी अच्छा आएगा. So that is all Sante about good food. So that is a very interesting salad. It is one of my favorites. And again, like I said, ये सारे combinations शेफ शैलेंद्र की देन है and people just love it. मतलब ऐसे काफी लोग हैं जो particular dishes के साथ इतने addicted होते हैं कि उनको reputation में मजा आता है। ओके। कहीं पर भी जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, सांते में आते हैं और उनको वही डिश खानी होती है जो उन्होंने 100 बार ऑलरेडी खा चुकी है। Right. और रिपीट वैल्यू इतनी है कस्टमर बेस की कि मेन्यू हमको हमेशा मल्टीप्लाई करते जाना पड़ता है, सीजनल मेन्यू बनाना पड़ता है ताकि जिन लोगों को वैरायटी की आदत है उनको वैरायटी भी मिल सके। करेक्ट। तो बिजनेस के अंदर भी कस्टमर बेस को वैरायटी की आदत होती ही है। आप वैरायटी के साथ कैसे खेलते हो आपके बिजनेस में? देखिए, मेरे पास जो मिलने आते हैं, मैंने कुछ डीलिंग किया है, कुछ किया है, मतलब मेरी उम्र उस टाइम 22-23 से स्टार्ट हुआ, 23। तो जब तक मेरा बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया ना, तब मेरे जो दोस्त थे वो बिजनेस वाले थे, कोई वैसे दोस्त नहीं थे, लेकिन जो मेरे बिजनेस में रेगुलर आते थे
इन्वेस्टर है, ये है, सब सब मेरे दोस्त हैं। वो सब मेरे से उम्र में सब बड़े थे, 10 साल 20 साल बड़े थे, वही मेरे दोस्त। और मेरे को हैबिट ही है कि मेरी उम्र से कोई ज़्यादा एज वाला होगा ना, वही मेरा दोस्त है। और उनके साथ ही मेरे को अच्छा लगता था। तो मतलब जाने अनजाने में आपके दोस्त आपके टीचर्स थे, आपको जिंदगी सिखा रहे थे तो कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए। Basically, they were mentoring him. या लास्ट टाइम डील किया था, वो सेटिस्फाई हुआ, वो कमाया। देखिए धीरूभाई अंबानी जब पब्लिक इशू जब लाया था पहले स्टार्टिंग में, मैंने सुना है ऐसा सावन ये हमने जो प्री સ્ટાર્ટ કર્યું આપણે શેરો આપવાનું Right. ત્યારે એને બધાને બોલાવીને બધાને શેરો આપ્યા હતા, सबको शेयर दिया है, बांटे थे। और फिर बाद में सबको बुला के आफ्टर पब्लिक इशू बुला के आप कमाए ना, सबको पूछा आप कमाए ना। उसी तरह मैं सबको मैं बोलता हूँ कि आप कमाए, आप कमाएंगे तो दूसरे बार आएंगे। I agree with you. और दूसरा ये कि हम पहले सब लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो मैं ही करता था। लेकिन वो सब के 2 फ्लैट ले लेते, 5 ले लेते, 3 ले लेते, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट 4-6 महीने में निकल जाते थे। ऐसा तो मेरा ग्रुप था। जैसे जैसे रेगुलर कस्टमर आते थे जैसे मेरा ग्रुप था, तो वही तो उस हिसाब से मतलब सो आपके कस्टमर्स आपके फंडर्स बन गए ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको 100% आप में विश्वास था और 100% आपके प्रोडक्ट्स ने उनको कमा के दिया था, मल्टीप्लाई करके दिया था, और वही आपकी ताकत बन गई। वही सुन लो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह सो भाई। अभी जो मैं डिश खाने वाला हूँ उसका नाम है रोस्टेड स्वीट पोटैटो टिक्की चाट। मतलब मैं तो वाह। चाट वाला आदमी हूँ, आई जस्ट लव चाट्स। फर्क इतना ही है कि सांते के अंदर आपको पोटैटो की जगह पे लोग स्वीट पोटैटो डाल देते हैं, सो इट बिकम्स अ हेल्दी वर्जन। Absolutely. और बाकी तो सबका साथ प्रोटीन्स में है। मैं तो रह नहीं पाया, मैंने तो खा लिया भाई। So this is white pea ragda, pickled vegetables, homemade chutney, and obviously sweet potato भी है उसमें. So it is something that I really like. I relish this dish. So we are all I going to just be. had it, Rajesh. It was amazing. Yeah, I'm just going to be enjoying that. मतलब And even the idea of replacing potato with sweet potato is a good one. good idea ना. Very good, very good. And while you chat, enjoying chat Yeah, yeah. is you get the something very flavor, interesting. Yes, it We are is. chatting and we are also enjoying the chat. Yes. ये पोटैटो जो चिप्स मिलती है वो यूएस में स्वीट पोटैटो चिप्स मिलती है हॉट। यहाँ पर भी मिलती है। Yes. Yeah. हाँ मिलता है You have started getting it here. really? इंडिया में भी मिलती है। और दूसरा ये है कि जो यूएस का जो पोटैटो है उससे कहीं ज्यादा स्वीट यहाँ का है। नाम स्वीट है, Better taste. स्वीटनेस यहाँ है, Better taste. बेटर है। Okay. It is a better taste in India. Hmm. So Savan, currently business focus क्या है आपका? Currently, business focus. Now, I used to be by like a already running property, but now I'm in the developing side too. अच्छा अभी डेवलपमेंट कर रहे हो आप? Yeah. So You are developing in a place called Columbus. Columbus, Georgia. I'm developing the huge gas station with the shopping plaza, with the my leasing going to be a Starbucks, Dunkin' Donut, and all the big because the location I pick is a prime location right on the exit. So I have a lot of my groundbreaking going to be in couple of months. That will be my 4th or 5th developing property in US. But this is the biggest one I am building right now. जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो सावन, तो वो बनाने के पहले आप क्या रिसर्च करते हो और आप फंड मैनेजमेंट का प्लानिंग कैसे करते हो? आप रिसर्च क्या करते हो और फंड मैनेजमेंट कैसे प्लान करते हो? Okay, so first thing what I do, Rajesh bhai, I buy the land first Okay. with my own money. Okay. So once I have my land with my own money, and then I put the plan together, that's what I want to do, and I'll take it to the bank. And since my land is paid off, bank will give me the money right away. Correct. So that's how I ये तो हुआ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर की बात। right. फिर इसके अंदर रेवेन्यू प्लानिंग कैसे करते हो आप? There are like 10 different way I will generate the revenue over there. Okay. Which is I'll have a control on the gas. I will able to pick my jobber. So in the gas business, you know, like you build some new gas station in US, they will give you like based on volume, they will do the survey. And let's see every day that road passing 100,000 car, so they will think this gas pump will be pumping 200,000 gas. So based on that, they give you some incentive to us to help us out to build our project. So they might be able to come with the tank, pump, and all this. So they do Excellent. इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, Yes, जिससे आपकी फैसिलिटी बनती है, Yeah. वो लोग चलाते हैं और आपको रेंटल आएगा। yes. इज इट रेंटल प्लस रेवेन्यू शेयर या खाली रेंटल?
rental plus some of the part of the things is sharing revenue. सारे अप्रूवल्स क्लियरेंसेस गवर्नमेंट के ये सारे आप कर लेते हो? Everything I have to do. और I उसके have to बाद- give them a और turnkey. ओके, और उसके बाद वो लोग फंड करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, No, बैंक पेट्रोल स्टेशन बैंक- बनाने बैंक- के लिए बैंक- पैसे देंगे वो? no. As soon as the my project is there, my construction thing, the graphic and all this, bank will start releasing the money to the contractor फॉर डेवलपमेंट. for development, and their contractor will give me the turnkey. ओके, And then during those time, I have a company. They will find my lease for me, ओके. and I will, since I am doing the gas station business for last 25 years, I will have a control for the gas station. I will put my own people over there and run it for me. ओके, So I'll have a rental income plus I have a profit sharing in gas station. ओके. ये बिजनेस को इंडिया में हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन फंडिंग. एक बार लैंड Okay. जगह पे आ गए, सारे अप्रूवल्स आ गए, हाँ. तो बैंक के पास से हमको कंस्ट्रक्शन फंडिंग मिलता है आप बाकी का प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. Right. लेकिन आप जो टेनेंसी क्रिएट, जो टेनेंट्स लाते हो साइट पर, उनके पास से आपको डिपॉजिट्स मिलता है, एडवांस रेंट मिलता है, जिससे आपका लोन ऑफसेट हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? Right. No, actually, Rajesh, if you look at the good leasee you want to be, then you have to give them some money to construct their inside interior thing. So they will sign as a long lease with us, and we have to give them an incentive to help और them out to build उनका a. लॉन्ग लीज आपको बैंक लोन में बेनिफिट कर पाता है? Yes, 100%. ओके, Yeah. सो दैट्स हाउ यू विल बिल्ड दिस पर्टिकुलर शॉपिंग सेंटर इन कोलंबस. Right. ये जो दुनिया में धमाल होती है, यूएस से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, ऐसे समय पे आपके जो प्लान्स बनते हैं इन्वेस्टमेंट के नए प्रोजेक्ट के लिए, Right. उसमें आपके विचारों में कोई फ्लक्चुएशन आता है, या आप उससे इंडिपेंडेंट और आप जो प्लान बना रहे हो उसी हिसाब से आप आगे चलते जाओगे? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो हिसाब से ही प्लान चलाता हूँ. जैसे मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कि फर्क नहीं पड़ता है यूएस क्या कि- कर रहा है, किधर कर रहा है, कुछ कोई लेना देना नहीं. like like एग्जांपल, मैं अभी ये पूरा शॉपिंग सेंटर बन रहा हूँ, तो मेरे बाजू में कोई कंपटीशन आएगा. सो आई लव कंपटीशन मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, ओके, तो मैं तो मेरे दोस्त लोग को बोलता है कि डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन. तेरे स्टोर के अंदर आके भी वो स्टोर चालू कर देगा ना, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ बिजनेस. so what business you do is immaterial, how you do the business is what is most important. What is more important? So that is how you do it differently. Yes. ये जो कन्वीनियंस स्टोर एंड पेट्रोल स्टेशंस का जो बिजनेस है, हाँ. बहुत सारे लोग करते हैं. There are Yes. hundreds of people doing it. Thousands What of is people. it? What is it different that you do? आपका उसमें अलगपन क्या है? अलगपन हो राजेश, I've been doing this for almost 25 years now. So I have a sources, जैसे बताया कि how about Costco, right? So I have I can buy some related to my convenience store with less cheaper price and the bulk, just like a Costco. So I can offer my customer better prices on that. ओके ओके ओके. और आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो, आपके लोग जो स्टोर्स पे रहते हैं, Yeah. वो लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर में एक कन्वीनियंट रिश्ता जब बन जाता है ना, तो आदमी को उस स्टोर की आदत लग जाती है, क्योंकि he has privileges in that store. So Rajesh, during this my journey, I used to only run one store back in 2000. Each and every customer I know by their name. Okay, if something happen in their family, I'm going to the the hospital to check them out, make sure they're okay. So anyone that somebody doesn't have money to pay any bill, I help them out to pay their bill. Stuff like that. Word spread like anything, faster than internet. But very So good you- work, huh? Yeah. So you build bridges, Yes. relationship bridges, Relationship, yes, and they are constant your customers for life, including Yes. the further generations. that is true. So you invest in relationship building as Yeah. an entrepreneur. Yes, First hand, internet free, yes, heart to heart. heart to heart. That is what you focus on. That is called heart to heart. Yeah. So right now I am more. I'm a successful in my business, but more than that, I create a lot of good friends all over the world, Yeah, which is my assets. absolutely. I'm witness to that. Yes. Absolutely. 20 years, right? Yeah, absolutely. 20 years. Yes, absolutely. Excellent. अभी जो रियल एस्टेट का जो माहौल देश में है,
इसमें आप अभी ज्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो और आपका ज्यादा ध्यान है प्लॉटेड डेवलपमेंट पे, एग्जैक्ट तो उसके पीछे के आपके विचार क्या है? मतलब आर यू क्लासिफाइंग कि कौन आपके कस्टमर्स बन सकते हैं जिसके वजह से आप प्री डिफाइंड प्री कैलकुलेटेड ऑडियंस को ही उस प्लॉटिंग में लाओगे ताकि वो प्लॉटिंग की वैल्यू और बढ़ सके? ये आपका ओवरऑल मास्टर प्लान क्या है? राजेश, देखिए बॉम्बे में जो बिल्डर है हाँ, उसका प्रॉफिट पहले से अभी तो कम हो गया है, लेकिन है प्रॉफिट। ओके, अहमदाबाद में प्रॉफिट बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड ओवर सप्लाई, तो बहुत ये कम हो गया है। दूसरा ये कि जो लैंड की जो बात आती है कि जो कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हो लैंड में करते हैं, तो लैंड में जो हमारा प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट रहता है वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है। अभी ये बेस्ट आर्किटेक्ट है बॉबी मुखर्जी, उससे मैं मिला था, तो बॉबी मुखर्जी ने बताया कि संजीव भैया इतना बड़ा लॉट लाओ आप, तो ये एमबी वली जैसा कुछ बना था। जो एमबी वली जो था वो उसका जो उस टाइम का जो कॉस्ट था उससे 6 टाइम अभी मिल रहा है। इतना मतलब एप्रिसिएशन ऑफ बाजू की जो लैंड है वो 100 रुपये मिलेगी, ये 600 रुपये मिलती है। वो एक्सीलेंट। ओनली द रीजन कि अच्छा वो डेवलप किया। सेकंड थिंग कि अहमदाबाद और बॉम्बे में जो बिल्डिंग जो बनते हैं इसमें एप्रिसिएशन मिलता है। आज 5 करोड़ का फ्लैट है, 2-3 साल के बाद 7 करोड़ हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद में जो 3 करोड़ का जो फ्लैट है 2-3 साल के बाद 2 करोड़ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है वहाँ डेप्रिसिएशन है। लैंड में अलग है, लैंड में इतना ऐसा मतलब ग्रोइंग है तो मतलब आज 100 रुपये है, 10 साल के बाद उसका 1000 रुपये होगा, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा होता है। सो अभी जो हमको जो तो ये मैं दूसरा एक मेरी बात है राजेश की बात ये है कि हमारा ये ऐसा काम है कि मैं अच्छा डेवलप कर देता हूँ सोसाइटी बिल्कुल ब्यूटीफुल, मतलब दुल्हन की तरह का सजा के रखने का, फिर बेचने का। वहाँ मतलब आप जितना बेचा वो सही है, सेल किया उतना सही है। आप हर प्रोजेक्ट के अंदर आप बिपाशा को लाते हो? बिपाशा मतलब नहीं बिपाशा मतलब बिजली पानी और सड़क। लेकिन राजेश आप पहले वो डेवलप करते हो और बाद में पब्लिक को ऑफर करते हो। बराबर, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये है कि चलो ये प्लॉट आज बिक गया तो ठीक है, 2 साल के बाद भी ठीक गया तो ठीक है, 5-6 साल के बाद जाएगा तो 3 गुना रेट देके जाएगा। नहीं बिके तो ज्यादा नफा, ज्यादा प्रॉफिट, और बिके तो नफा ही है। मतलब ये जो लॉजिक है, ये जो बॉम्बे का जो मेंटालिटी बॉम्बे का कुछ अलग है, लेकिन ये अहमदाबाद की जो मेंटालिटी मैं सोचता हूँ ना, अरे कहीं भी बॉम्बे में भी यही होता होगा, लैंड में तो यही होता होगा। संजय ठक्कर कार्ब्स और फैट्स खाते ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन खाते हैं। इस बाजरा रिसोटो की तरह। ये बाजरा रिसोटो सांते का एकदम फेमस डिश है, लोग दूर दूर से खाने आते हैं। एंड बाजरा रिसोटो इज नथिंग बट वेरी गुड प्रोटीन्स। इसमें ना फैट है, ना फ्लफ है, ना कुछ है, ना ग्लूटेन है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे अभी संजय ठक्कर इज ओनली इनटू प्लॉट डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर खाली प्रोटीन ही प्रोटीन है। और रियल एस्टेट में प्रोटीन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो ये काफी डिफरेंशियल थिंकिंग है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे प्रेस्टीज डेवलपर्स हैं, तो इरफान रजाक ही यूज्ड टू बी इन्वेस्टिंग इन लैंड वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले ही यूज्ड टू इन्वेस्ट इन लैंड एंड डू लैंड फ्लिपिंग। लैंड बेचते थे वो इन्वेस्ट करके, बाद में वो रियल एस्टेट डेवलपर बन गए। टुडे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स इन द कंट्री इजीली। तो उन्होंने जो व्हीकल यूज किया है, मतलब फ्रॉम प्लॉटिंग इवेंट इनटू कंस्ट्रक्शन, इन्होंने रिवर्स गेयर्स डाल दिया। मतलब देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला फॉर वेल्थ क्रिएशन। एब्सोल्युटली। जो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप अचीव कर सकते हो, वो बिजनेस करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि लैंड में से आप बिल्डर बनोगे तो ज्यादा पैसा बनाओगे, और बिल्डर में से अगर आप लैंड डेवलपर बनोगे तो कम पैसा कमाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और इनके चेहरे पे जो खुशी होती है जब वो लोग जब मेरे साथ भी ये फॉर्मूला जब डिस्कस करते हैं, तो वो जमीन की खुशी उनके चेहरे के मैप पे नजर आती है। दूसरा एक है, अभी मैं ऋषिकेश गया था, गंगा नदी थी, ऐसा उसका फ्लो जा रहा था नदी का। मैंने ये सोचा कि चलो हम बोटिंग करते हैं, रिवर्स जाना पॉसिबल है नहीं, और जाएंगे तो क्या होगा, हादसा होगा। जैसे रिवर जा रही है, जैसा फ्लो जा रहा है उसके पर चले जाओ, कभी रिवर्स मत जाओ। जैसे जैसे जा रहा है, मार्केट जा रहा है, डिमांड जा रही है, उसी तरफ चले जाओ। उधर उधर मत सोचो कि यहाँ इस तरफ जाएंगे या पीछे जाएंगे, मत सोचो ही नहीं, जैसे जाते हैं चले जाओ। आप जब भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो? आपके पास 4 प्लॉट्स है, आपको लेना 1 है, तो वो 4 में से 1 प्लॉट आप
कौन से ग्राउंड पे या क्या पैरामीटर्स पे आप चूज करोगे? देखिए क्या टर्म्स होती है, क्या क्या लोकेशन होता है, उसके सब निर्भर करता है। जो अच्छा लोकेशन है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को 3 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए। और जो कोई बैड लोकेशन होगा चलो 12 महीने में चलेगा, वो होगा दूसरा होगा था कि 1.5 साल चलेगा। लेकिन लोकेशन फर्स्ट। और बिजनेस में मैं सोचता हूँ ना तो 3 चीज़ मेन है। 3 चीज़, कोई भी बिजनेस है 3 चीज़, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। आपने वो डायलॉग चोरी किया कि उन्होंने आपका डायलॉग चोरी किया? कौन है वो हीरोइन? कोई चोरी तो किसी ने किया, लेकिन ये मेरी सोच है, मैंने तो सुना भी नहीं है उसके साथ। नहीं बट देयर इज ये मेरी सोच तो है। एक बहुत बड़े पिक्चर में ये हीरोइन ने ये डायलॉग मारा है। नहीं, उसने ऐसा बोला, वो हीरो ने एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हाँ राइट। सो ही इज सेइंग लोकेशन Location, लोकेशन, लोकेशन। लोकेशन, जो लोकेशन अच्छा है आपका तो कहीं आप रॉन्ग नहीं जाएंगे। लेकिन Yes. आप नेगोशिएट कैसे करते हो? बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि रियल एस्टेट में बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है सेलिंग से देखिए ज्यादा। अभी लैंड का रेट कुछ कम नहीं है। हाँ, रेट मतलब लॉट ज्यादा हो जाता है। आप नेगोशिएट प्राइस में करते हो या टर्म्स में करते हो? प्राइस टर्म्स तो हमारे जो गुडविल है तो सामने बोलता है कि आपका आप बोलो क्या क्या करना है, पैसा तो मेरे को देना है। तो मतलब ऐसा कुछ जिग जाग करते हैं हो जाता है। लेकिन टर्म्स जो नेगोशिएशन जो होता है ऑलवेज रेट में, और लोकेशन अच्छा है। दूसरी एक बात है, मैं प्लॉट लेने जाऊँ, दूसरा कोई लेने जाएगा तो वो प्रीफर संजय भी को करेगा कि मैंने आपका नाम सुना है, आपका पेमेंट डील बहुत अच्छा है। वही तो हमारी गुडविल है। वो उनको नहीं देगा, मेरे को दे देगा। तो आप ऋषिकेश वगैरह जैसे जगहों पर जाते रहते हो, आप काफी धार्मिक हो ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आपने नाम देव कॉर्पोरेशन रखा है? नहीं, मेरे बेटे का नाम देव है। लेकिन देखिए अभी मेरा बेटा कुछ हैंडल कर रहा है और मैं थोड़ा इसमें भी चला गया हूँ, मतलब डोनेशन और इसमें कि जो 60 इयर्स की एज है, खुद कमा नहीं पा रहा है, अपंग है, विडो है, ब्लाइंड विडो है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे फैमिली को मैं एडॉप्ट कर लेता हूँ। हर महीने फूड चला जाता है उनके ऊपर, पूरी किट 22-22 सब आ जाता है इसमें, घी तेल सब आ जाता है, सब पूरे महीने भर का राशन उनको भर देते हैं आप? हाँ। फिर यहाँ फेस्टिवल जो उत्तरायण का जो फेस्टिवल मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल, वहाँ अहमदाबाद में तो बहुत है, या बॉम्बे बहुत में बड़ी तो बात है। इसमें क्या होता है कि कोई बड़की जो है ना पंख निकल जाती है, ओ कट जाती है। इतना और जनवरी फरवरी में जो पंख कट जाती है तो 5-6-10 केस बनते हैं। ऐसा 10,000 बड़के। वो बड़का मैं अभी जो मैं फार्म हाउस बना रहा हूँ, मेरा वहाँ एक बना रहा हूँ कि ऐसे जो कोई बर्ड है कि जो उड़ ही नहीं सकते, क्या करेंगे, बाहर को फेंक देंगे तो वैसे भी उसको मतलब कोई ना कोई मतलब खा लेगा उसको। तो ऐसे बर्ड को रख के मैं उसका मतलब सेवा करना, बस 10,000 बर्ड, मतलब ऐसे ही इसमें कर रहा हूँ। ऋषिकेश में इसलिए गया था कि वहाँ मैं, प्रवीण भाई, सावंत, सोनू और सब मिलके 6-8-10 लोगों ने हमने ऋषिकेश परमानंद निकेतन आश्रम है, वो आश्रम में हम भोजनशाला चालू करें, फ्री, जिसको आना जिसको खाना खाने जाओ, और बढ़िया फूड, जिसको फ्री फूड। और उसमें जो सेटिस्फेक्शन जो राजेश मिलता है ना, माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। तो सांते की तरफ से हम उस फूड को क्यूरेट करके देंगे आपको, या हमारे तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा? हाँ, परमानंद निकेतन, हाँ, हम लोग उसको क्यूरेट करके देंगे आपको, ये हमारे तरफ से एक छोटा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उस ऑफरिंग में। चलो बहुत अच्छा। अरूप पटनायक साहब नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो बम्बई के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने कोणार्क कैंसर फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की थी कई साल पहले, और आज तक कोणार्क कैंसर फाउंडेशन ने 1,26,000 लोगों को कैंसर से बचाया है, और फ्री सर्विसेज देते सारे एनजीओ के साथ टाइप करके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की मदद से। तो ये काफी बढ़िया काम है जिसमें अभी मैं भी काफी बड़े पैमाने पे सक्रिय हूँ। तो किसी को भी कैंसर का ट्रीटमेंट लगता होगा तो कोणार्क कैंसर फाउंडेशन के जरिए और कोणार्क कैंसर फाउंडेशन की मदद से हम लोग जान बचाने का काम कर रहे हैं। वेरी तो गुड। आपके जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ हम भी जुड़कर किसी को इस प्रकार की अगर समस्या रहेगी तो उसमें हम हल करने में मदद कर पाएंगे। बिल्कुल भैया। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि लर्न अर्न एंड रिटर्न, हम जीवन में सीखे, उस सीख से हमने पैसे कमाए। वो सीख अलग अलग किस्म की होती है, पढ़ाई की होती है, बुजुर्गों की होती है, दोस्तों की होती है, कंपटीशन की होती है। सीख तो कहीं से भी मिलती है। सीख लिया, कमा लिया, अभी हम वापस भी करना जरूरी है। जैसे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, प्रमोद भी करते हैं, आप भी करते हो, सब लोग अपने अपने तरीके से करते ही जा रहे हैं। प्रमोद, आई वांटेड टू आस्क यू
कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ अ कॉन्सेप्ट सेइंग दैट मनी इन गुड हैंड्स बिल्ड्स द सोसाइटी. अच्छे हाथों में अगर पैसा आता है ना तो अच्छा काम करता है. जैसा भी संजय टक्कर अच्छा पैसा कमाते हैं तो नेक काम करते हैं, इतने लोगों का आश्रम चलाते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाएंगे. सावन कमाता है तो अच्छा काम करेगा. तो अच्छे लोगों के हाथ में पैसा जाना जरूरी है. उसके लिए बिजनेस को मजबूत बनाना जरूरी है और बिजनेस में से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर आप समाज में वापस दे पाओगे. दैट इज व्हाट एवरी एंटरप्रेन्योर डज एंड दैट इज व्हाट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड डू. Correct. When you create a brand, people start believing in what you are committing, what you are promising. फिर वो सोशल चैरिटी होगी या प्रोडक्ट की गारंटी होगी Correct. या परफॉर्मेंस की गारंटी होगी. आपने जीवन भर यही काम किया हुआ है. इसमें सीख क्या मिली आपको? कहाँ पर आप प्रॉमिस करते हो लेकिन लोगों के वजह से वो प्रॉमिस फेल हो गया है, जिम्मेदारी तो आपके सर पे आ रही है. तो इसमें करेक्टिव मेजर्स क्या लिया आप? So first I'll answer that first part of your question. You know, the way I ran my life was first 25 years of your life is all about learning. Next 25 years of your life is all about earning. Earning. And next 25 years of your life is all about returning. Yeah. So we're all in the returning phase, I hope. I don't know how young you are. You We must are be all. You're in your 20s, listen. So that's one part. Second part is the business purpose is to make money, but not only for yourself. Like Sanjay Bhai gave a very beautiful example of Dhirubhai Ambani's public issue getting listed and how he asked everybody, did you make money out of it? I think wealth creation should never be a one person. It should not center on one person. It should be distributed wealth creation. One. And two, there is a big strata of our society who don't have much with them. Like you spoke about cancer. I've also had a cancer foundation where I used to work with Wadia Hospital Yes. and the Manipal Hospital. So when I used to go to the cancer wards of small children, only small children, it was a real nerve-shattering experience. छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्यूब उनके बॉडी में, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं चाय पीने के लिए, वो जमीन पे बैठे हुए हैं. तो संजय जैसे लोग हैं ना, these are the people who come as a messiah in their life. They come and donate money, and you are also doing so much. So I think there's somewhere, like he spoke of good karma. These are all good karmas. Like he just spoke about the birds that got wounded or got chipped. He wants to help them. And what leave what he's going to do, but the very thought is so novel. So I'm a great believer that Ratan Tata is a classic example of that. And I think everybody does. All the big industries in this country are doing a lot of work for the poor. I think if you don't do it, then there is something wrong in your personality. Absolutely. Absolutely. Something is wrong in your personality. Absolutely. Because you're only hoarding wealth. You're not distributing wealth. सावन में ना दूसरा बीच में एक मैं बात बोल देता हूँ. मैंने आज ही मतलब फ्लाइट में मैं आ रहा था तो मतलब जो डाउनलोड जो मैंने किया था मैं देख रहा था. हमारे जो गुरुजी है वो गुरुजी बोल रहे थे कि अब्दुल कलाम का कुछ एग्जांपल दिया था. अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम ने ये छोटा था, उससे मम्मी ने बोला कि ट्रेन की टिकट, मतलब कहीं जाना था कि ट्रेन की टिकट ले भेजा कि तू टिकट लेके आ जा. वो गया, ट्रैफिक में बहुत स्टक हो गया, वापस आ गया. मम्मी ने बोला कि तू टिकट लाया तो ट्रेन की, लेकिन मम्मी वहाँ ट्रैफिक था, मैं पहुँच नहीं पाता तो टिकट लेके आता तो ट्रेन मिस हो जाती. हम चले जाते हैं वहाँ, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, अंदर बैठ जाएंगे, चलेगा बिना टिकट, कोई नहीं देखेगा, ऐसे ऐसे चले जाएंगे. अब्दुल कलाम ने ये बोला कि कोई नहीं देखेगा. उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा कोई नहीं देखेगा ऐसा मत बोल, भगवान तो देखेगा ना. Correct. So you're always बात ये monitored. आती है, बात ये आती है. You don't need a camera for that, but you're always monitored. Yes. सावन, मुझे ये पूछना है कि अगर समझो मैं आपको वापस 10 साल पहले लेके जाता हूँ और आप वापस 20 साल के हो गए, हाँ. अगर आज आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो कौन सा बिजनेस रहेगा और आप किस तरीके से उसको चलाओगे? I will do what I'm good on it. Obviously, real estate, and that's what I'm going to do it. Okay. That's what I'm going to do. But the one thing I want to do in Mumbai, just similar to this broadcasting or kind of in Bollywood film industries, I want production. That is, I want to do it, but I'm not getting the right hand with me. So hopefully, if something come up like that, I'll definitely interested on that one. So you are going to get into movie production, web series production, and you want to become a producer. Yes, I want to be. That's just for the not to make money, but to be just keep myself more active in the India. Excellent. So Savan is going to be involved in a very interesting project in the US. Savan is so smart that he puts smart people to work. Abhi Elon Musk will be working for him very, very shortly. Elon Musk, he is coming up with cars where it will be driverless. There are already such cars, but he is coming up with a model कि आप ये गाड़ी खरीदो और आपके स्पेयर टाइम में ये गाड़ी उबर का काम करेगी विदाउट अ ड्राइवर.
So Savan is going to invest in 50 Teslas, 50 Teslas. I'm going to buy 50 Tesla. I'll have my own parking lot. Yes. And I'll have my own charger over there, which is all this going to cost me around $4 million. But the day I start my business, every day I just need 2 manpower to just put the car on the charging and clean it up. Rest of this thing is going to make money by himself. मतलब पहले अभी तक सावन लोगों को काम पे लगाता था, अभी वो इलॉन मस्क और टेक्नोलॉजी को काम पे लगाने वाला है. इवॉल्विंग टाइम्स आर सो इंटरेस्टिंग. मतलब फॉर एग्जांपल ये रागी पिज्जा है, लोगों को पिज्जा का नशा है. ये सांते के अंदर जो रागी पिज्जा मिलता है वेजिटेरियन सारे वेजिटेबल्स के साथ, बच्चों को इतना पसंद है और माँ बाप को भी अच्छा लगता है कि जो खा रहे हैं दैट इज नॉट बैड फॉर देयर हेल्थ. करेक्ट. तो रागी पिज्जा दिस इज नथिंग बट इवॉल्विंग इनटू योर बिजनेस मॉडल्स. Right. रेस्टोरेंट तो पहले से हुआ करते थे, लेकिन आज अगर आप फूड को अच्छे तरीके से पैकेज करके दो लोगों को विच विल एड टू योर गुड हेल्थ, डिमांड बढ़ता है और लोगों को एडिक्शन मिल जाता है अच्छे खाने की. Absolutely. So it is business is all like that. He keeps making his own pizza. आटा उसको इलॉन मस्क प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी के रूप में. लेकिन And I'm looking forward to that business model जहाँ पर 50 गाड़ियों का पार्किंग लेने के बाद without hiring a single employee, Brilliant. it is going to be catering as a Uber service and he'll be making money. And recovery of capital is in 1 year. Very futuristic. Yes. Projected Very recovery of futuristic. revenue of capital revenue is 1 year. Max is 15 months. और दूसरा कोई भी बिजनेस मॉडल आज दुनिया में ऐसा अगर होगा जहां पर कैपिटल रिटर्न अगर 18 महीने में हो सकता है तो उससे बढ़िया बिजनेस नहीं माना जाता. कैपिटल रिटर्न ऑफ 18 मंथ्स इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट बिजनेस The मॉडल. और उससे best कम अगर रहेगा Yeah. but But all the more better. another means you kind of you investing in the metal. You know, the car is a metal. Absolutely. So it's going to depreciate that metal. You know, so उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. yes, yes. Excellent. depreciation. So Pramod, what are the decisions in your business life that you regret, and if taken again, how will you make it different? I think in my business life, one mistake we made was to go to Dubai and start the fire business, which was never our expertise area. Okay. You know, we should not have gone there. But you know, when we were doing very well, sometimes we became very blinded by the success. So we got blinded by our success. We invested money in Dubai, and he also spoke about Dubai. I realized that if you're doing business in Dubai, you should take money from there and bring it here, not take money from here and go there. So that is one lesson I learned. The second lesson I learned is that you know, whenever you're successful, like you said, keep some money on the side for your future needs, which we didn't do. We went on spending. So we made a lot of mistakes, Rajesh. Like I said in the initial phase, that you know, entrepreneurship is all about instinct and gut. So sometimes we do go wrong, and I have gone wrong many a times, you know. So I always believe that we human beings are WIP, work in progress, till we die. So learning never stops. At the age of 60, 70, 80 also, if you're alive, you'll get all the learnings. But the worst thing that one can do is to repeat those mistakes again. You can make a mistake once, not twice, because then it becomes a blunder. Yes. It's not a mistake It's anymore. not a mistake It's not a anymore. mistake anymore. So I try to avoid blunders when mistakes I've made many. Do I regret? No. Why? Because I must have lost money. I must have lost businesses. But at the same time, I learned a lot, because finally, if you can utilize that learning and convert that into a successful model, because if you look at the success story of KFC and all, at 65, Sanders starts a business and makes it $1 billion company. So in today's DNA, I think age does not matter. What is, because you see new age companies, 23, 24-year-old promoters are become billionaires. So age is not in my mind. Success failure is not in my mind. It is what you do today and what you plan to do tomorrow, I believe, defines my success. So what is your big plans for the next few years of your life? What are the next big plans? Honestly, I don't have a definite answer for that, but I am exploring, and I want to be, like I said, I don't want to go to non-core areas. So I am from the security industry. I would like to stick to that. It's becoming very, very interesting now with all AI and IoT and automation coming in the security industry. It's going to completely transform how cameras look at people. It is not a dumb camera. It's very intelligent. It'll look at you and tell you how good you look, what's your age, what's your gender, what's your mood, right? And are you notorious or you're a normal person? It can tell you a lot of things. Like in the pet, we're building a camera which can gauge mood of a pet. Angry, happy, sad,
and then play the music accordingly. So there's a very exciting. It's world a human brain now. AI, you can put a human brain into a device. Yeah. So it'll start thinking like a human being and Yeah. behaving like one. So we are going to outsource our brains now. Absolutely. We're already outsourcing our brains to Chat GPT and the rest. Like, so there and camera also, you're going to outsource your brain now. Camera has become very intelligent, and I believe the inflection point of the industry is coming now. You know, it's coming now. Recently, a company went listed, market cap 25,000 crore. Wow. Nothing, I mean, normal company, 25,000 crore market cap. So security is going to be the future. I'm very bullish about it. When we started, you know, people were not willing to invest. Today, it's a big ocean out there. So I'm very excited, and at this point, no definite answer, but maybe, But you're in the plan in the making. yeah, something is Excellent. happening. Something Excellent. is cooking. One of the challenges of traveling from US to India is jet lag. Yes. So you can see the jet lag on He already noticed yeah that. on Sawan Shah's face. Yeah. So how do you manage the jet lag that happens in business? Well, कभी कभी कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, कोई स्टोर शुरू करते हो, कोई गैस स्टेशन शुरू करते हो, वहां पर बिजनेस टेक ऑफ करने के लिए थोड़ा ज्यादा लंबा जेस्टेशन पीरियड लेता है बियॉन्ड योर कैलकुलेशन. right. तो आप उसमें एडजस्ट कैसे करते हो? Well, adjustment is try to push it. Marketing, work as hard as okay, whatever customer you're getting, just try to take care of them. Word will spread, and one day it'll happen. You know. सो with your expectation. जेट लैग होगा तो भी माइंड फ्रेश और शार्प रहता है. Yes. बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं अभी. Yes. Mind always sharp. So that is the Body indication. asking some sleep, but the mind is always sharp. Mind is always sharp, and he has got very sharp ears. Mind is always working. Mind is very His sharp. and mind is always, like a treadmill. absolutely, it's on all the time. Always working. So Sanjay, Always what is the biggest decision of your life that you have taken till now, and how did you protect that decision? Because every decision needs to be protected before it starts giving you positive results. So what is the biggest decision of your life, and how did you protect it? बिकॉज हर डिसीजन में कोई Other than marriage. राजेश, हर जो डिसीजन होता है जो कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें कोई डिसीजन में कुछ ना कुछ तो फर्क रहता ही है कि मतलब ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, ये करना कि जैसे जैसे चलता है, समय चलता है, जैसे सीजन चलती है, जैसे काम चलता है, डिमांड चलती है, मार्केट चलता है, उस तरह चलना पड़ता है. लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन बंद किया. आई कंप्लीट. So that was the biggest decision. एग्जैक्टली. मैंने 125 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए. बाद में मैंने बंद कर दिया. 125 प्रोजेक्ट पूरे करने के बाद बाद मैंने कंस्ट्रक्शन बंद किया. कंस्ट्रक्शन बंद किया क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं था. और जो प्लॉटिंग की स्कीम में जो प्रॉफिट है वो मेरे को लगता है ये मेरा अच्छा डिसीजन था. और अहमदाबाद में जो बड़े बड़े जो थे तो टॉप 20 बिल्डर सबने मेरे पीछे पीछे बंद किया. सब प्लॉटिंग में आ गए. मैं फर्स्ट में आ गया. प्लॉट में लैंड में कोई प्लॉटिंग करता है, कोई लैंड करता है. कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं एक प्रोजेक्ट चलता है लेकिन एक साथ में 9 प्रोजेक्ट चलता है, ऐसा नहीं. एक्सेलेंट. और आपने उस डिसीजन को प्रोटेक्ट किया क्योंकि आपके पास लैंड बैंक थी. मतलब लैंड आपने बैंक बिल्डिंग लाइन बंद करके लैंड खरीदने नहीं गए, लैंड आप खरीदते गए थे और बाद में आपने बिल्डिंग बंद किया. खरीदता भी गया था और जो पुरानी थी इसमें भी डेवलप करता गया. मतलब दोनों तरफ. साइमल्टेनियसली दोनों करते गए. दोनों, जैसे राहुल बजाज ने हम्म. सबसे बड़ा डिसीजन लिया, स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग बंद करके मोटरसाइकिल शुरू कर दिया. That was. अभी इट वाज अ बिग डिसीजन. मतलब My, पूरी my, दुनिया बजाज को स्कूटर के वजह से जानती थी हम्म. और उस व्यक्ति ने स्कूटर बनाना बंद कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग बंद करके, और मोटरसाइकिल का इंडस्ट्री में क्या उसने बात है. पैर डाल दिया. एंड टुडे बजाज इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स नॉट ओनली इन द कंट्री बट आल्सो Absolutely. इंटरनेशनली. और उनका और एक अच्छा एनेक्डोट है. वो कहते हैं कि इंडिया में हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आते रहेंगे, लेकिन अफ्रीका में बजाज मोटरसाइकिल इज नंबर 1. या तो कहीं पर तो नंबर 1 बन गए. तो जैसे बिल्डिंग लाइन के अंदर आपने 150 बिल्डिंगे बनाए, बहुत सारे बाकी बिल्डर्स भी थे, लेकिन प्लॉटिंग में आप पहले थे, तो यू गॉट द फर्स्ट मोर एडवांटेज. वन ऑफ द पहले, नॉट एग्जैक्टली पहले क्योंकि प्लॉटिंग हमेशा से चलता आ रहा है. कितना लोग करते हैं. वन ऑफ द पहले जिन्होंने बिल्डिंग लाइन बंद करके Plotting में, आपने exactly, प्लॉटिंग में exactly. शुरुआत की. सो यू आर वन ऑफ द फर्स्ट टू डू दैट. नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू था तब तक भी मैंने 17 प्लॉटिंग की स्कीम कंप्लीट की थी. Okay. लेकिन वो स्मॉल फिर बाद में आपने छोटी गाड़ी छोड़ दी और बड़ी गाड़ी बड़ी पकड़ गाड़ी ली. में और वैसे मैंने पहले बताया कि आज बिके तो अच्छा है, 3 साल के बिके तो 3 गुना रेट देके जाएगा. तो मतलब जो पड़ा जो अच्छा, मतलब जो चालू जो रहता है कि उसका जो प्रॉफिट बढ़ता रहता है, उससे अच्छा क्या है. धीरूभाई अंबानी ने हमेशा कहा करते थे कि दैट ही ऑलवेज हायर्स पीपल स्मार्टर देन हिम
हाँ Yes. बट अंडर हिज कंट्रोल. Yes. मतलब वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे और बाकी सब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे. वो उनकी खासियत थी. हम्म, और अच्छे लोग अगर जीवन में आते हैं ना, हम्म, तो वो बिजनेस के अंदर मिठास लाते हैं, ग्रोथ लाते हैं. जैसा भी ये सांते का जो तिरामासू है, हम्म, ये अभी लास्ट का जो डिश है, 7th कोर्स, Yes. ये आपको अभी मिठास देगा. और ये बहुत अलग किस्म का तिरामासू है. मतलब ऐसा आपको तिरामासू कहीं नहीं मिलेगा. very nice. आप सभी लोग वेल ट्रैवल्ड लोग हैं, लेकिन ऐसा तिरामासू शायद आपने कभी टेस्ट नहीं किया नहीं होगा. नहीं कभी नहीं. पक्की बात है? बहुत अच्छा, पक्का बहुत बात है. पक्का. तो जैसे धीरूभाई अंबानी करते थे, अच्छे लोगों को लाते थे और उनके साथ में रख के उनको भी बड़ा बनाते थे और खुद बड़े बनते थे. ऐसे पीपल मैनेजमेंट स्किल्स में आपने लोगों को हैंडल करने की कौन सी ऐसी अदा सीख ली जो बाकियों से अलग थी और लोगों ने आपको अच्छे पैसे कमा कर दिए? अरे माय गॉड, ये तो ह्यूमन नेचर है. कोई आदमी को आज कुत्ते भी जो हॉट 3-4 बार बोलो कुत्ता दूसरी बार तुम्हारे पास नहीं आएगा. 3-4 बार बोलो तो आएगा नहीं. वो जो एम्प्लॉय है वो तो आदमी है, उसको उसकी भी गलती होती है, तो धीरे से समझाओ. अपने नेचर से मतलब हद से बात करो उससे कि भाई ये काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें तो तेरे को ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ऐसे इसमें तो नुकसान होगा. तो रिस्पेक्ट मतलब करो, इस तरीके अप्रिशिएट करो एग्जैक्टली और कॉम्पनसेट भी करो. एग्जैक्टली. और दूसरा, हम सबको मतलब ये पशु पक्षी को भी वो करते हैं, तो उनका भी पेट भरना चाहिए. उनको सेटिस्फाई होगा उतना पूछ लेना कि भाई तेरे को ये पूरा हो जाता ना, उसके स्किल के हिसाब से ऐसे ऐसे उनको इनक्रीज करें. सुपर. और जैसे भी हो उसका उनका काम जैसे बढ़ता जाता है, तो उसका मतलब वो करता है. हम नहीं करते काम तो ये लोग ही करते हैं, हम तो सुपरवाइजिंग करते हैं. सही बात है. मतलब अगर आपको मटकी फोड़ना है तो आपके नीचे के लेयर्स मजबूत होने जरूरी है. जो थर लगाते हैं ना लोग, एग्जैक्टली जिनके कंधों पर चढ़कर हम मटकी फोड़ते हैं, एग्जैक्टली. you really need to take care. What are your best people management skills, Pramod? Well, just taking off from where he left, I have a little different view on this. I have, in my leadership thing, I have worked with so many people, and I realized two very fundamental things about people. One, people are not bad. The leadership makes them good or bad. Yes. That's well one, said. one well thing, said. That's one thing I learned. People never leave organization, they leave the bosses. Absolutely. But here I felt people are not bad. It's the leadership that decides whether they're going to be bad or good. If you're a bad leader, they'll become bad. If you're a good leader, they'll become good. That's one thing I learned. Second thing is, what do people actually come to you for? They come to you for multiple gain, salary, name, fame, position, and all, because they don't have the guts or the resources to become an entrepreneur. But they are also an entrepreneur in some way or other, where you don't, they're intrapreneurs, not entrepreneurs. So if you give them, like he just mentioned, Sanjay Bhai, that if you give them respect, if you give them care, if you show concern, and you make them part of your larger family, they will do everything that you want to do, and they will do it better than what you can do. And I am a great believer of team. And the last thing I learned was whether you want to be an autocratic leader or a democratic leader. I found that in today's time, autocratic leaders have no place. It's only the democratic leaders who succeed. So this is the traits which I also followed, being democratic, creating a team. And I've done one more thing very successful in my life, is experimenting with people. You know, there was a service guy, I gave him into sales. He excelled into sales. There was a sales guy who was put into operations. He excelled into operations. And that's the beauty of a human body. It can adapt to so many conditions. Why not professionally it can adapt? I tried it and I was very successful, Rajesh, with all those things. As good as a tiramisu. Oh, wow. Very nice. So let me ask a question to my jet lag friend. उसके आंखों में नींद है लेकिन उसका दिमाग फ्रेश है. Yes. आपके पास समझो एखादा ऐसा एम्प्लॉय होगा, हाँ. जिसने आपको बहुत अच्छी बढ़त दी, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दी, हाँ. लेकिन अभी वही एम्प्लॉय आपको ग्रो करने नहीं दे रहा, आगे की ग्रोथ करने नहीं दे रहा है, Right. और आपको ब्लॉक करके रख रहा है ग्रोथ से. Right. अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने अनजाने में. में. ऐसे सिचुएशन को सावन शाह एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे हैंडल करेगा? A situation ko I will try to keep that employee with me, हाँ हाँ. but try to find the replacement ओके. to be hire a better person, more knowledgeable, and see how he can help me. And I will do one extra thing for the new person. I will give her some profit sharing out of my new growth. So that's how I'll try to be grow in gradually. To the new employee or to the existing one? New जो आपका employee, growth block कर रहा है. I will whoever blocking the road, I will keep them to. I'll keep it. I will not fire that employee, but at the same time, I'll hire another extra person about that person
to make sure my company is growing gradually. Fantastic. What is your best people handling skills, Pinto? Savan. There is a lady called Jennifer Uh-huh. in my back office. Since I'm here doing traveling all over the world, I have every morning 8 o'clock. I have a conversation with her by email or by texting or by phone. Agenda for day, what need to be follow up and everything. So she's been with me for almost 20 years. So those follow up things and routine thing. Now I might don't have to just maybe few chatting for the day and everything. Take care of it where it's supposed to be. And she's a very well organizing. So I will keep it her forever and ever. And like you asked me, what you will do, you have an employee like that, right? She's the one who's above everyone. So it's nothing, never come back to me or say, oh, somebody's stopping our growth, you know. Okay. So you have delegated responsibility along with authority, or you have delegated only responsibility No, responsibility and authority. and authority? Yeah. And you keep checking the use or misuse of that authority? Yeah, but before she make any big decision, She'll consult you. she consult me and then we'll make that decision together, what is best for the company. Excellent, excellent. So every entrepreneur always lives with a wish list. Like for example, my wish list as a strategic investor is I want to invest in 100 operative businesses where I will operate those businesses shoulder to shoulder with entrepreneurs and make them successful and take them to the stock market. So that is my wish list as an entrepreneur, as a strategic investor in businesses, right? Right. As a growth investor. Similarly, what is your business wish list, pending business wish list to be achieved in the coming years? Coming years, I'm pretty much also involved in the gaming business. Okay. So I like to grow more on my gaming business. One day maybe I like to have my own casino, you know. Okay. So that is my wish list. So then we don't have to worry of losing at the casino because I'll That's get it right. back. You Yeah. get it back. That's a good one. Excellent. So I want to share one thing with you, Rajesh. You know, you show me my habit and I have a gambling things. I gamble, you know, but I also make a lot of money from my gaming business, you know. Okay. So आप बोलते हैं ना जो खेल सकता है वही खिला सकता है. Ah, okay. That's why I always stay active on my gaming. Brilliant. So this is called doctorate in justification. Pramod, what is your wish list? What is your business wish list? Nothing as of now. Very neutral, very pragmatic, very prudent. And I'm thinking what should be my next big plan. I will help you with that. Yeah, I know. I'm Because gonna I come- want you to team with me. So, I mean, it's a privilege to work with you, Rajesh. It's not about me. I think everybody on this table and outside this table also know the kind of caliber you have and the kind of work you do and the kind of passion you bring and the kind of energy you bring and most importantly, the big vision that people lack many a times. So yes, we will come to you. But right, as to answer the question very candidly, nothing as of now. Very Excellent. neutral. Okay. So it's a blank slate at the moment. So you Absolutely. can write a new plan. Absolutely. Starting up fresh. संजय ठक्कर अभी क्या किस चीज को टक्कर दोगे अभी आप? What is your business wish list? नहीं बस अभी तो एक ही फोकस है प्लॉटिंग. Plotting. फिर मैं अच्छा एक फार्म बना रहा हूँ, वहाँ थोड़ा फोकस है. और जो लैंड बैंक है वो जैसे उसको आप फार्म हाउस बोल के ना मतलब फार्म हाउस को शर्मिंदा कर दोगे. उसको आप फार्म हाउस नहीं बोल सकते हो. So when you grow leaps and bounds, the size of your ideas and the size of your dreams matter a lot. And people even who have come from humble beginnings, when they execute large vision projects, that contributes to the development of the society. So wealth building, like I said, people do it in different formats, but whatever you do, if you help the economy to build, ultimately it supports not only the society but the nation at large. People with big visions, big dreams, big wish lists are important for India as a country to succeed, survive, grow, and become a developed country from the current status of a developing country. So if you want to have trillions of dollars of turnover that India wishes to do, then we will need many Sanjay Thakkars, we will need many Savan Shahs, we will need many Pramod Raos, and I'm always there as doing my role in whatever I can add as a value to the economy. And Savan Shah, who is our man in the US, living in America as an American, earning in US dollars, but thinking about India and now planning to invest into the Indian entertainment industry. That is true. That's also giving back to the country. That's So it. please keep doing that. Yes. And we will keep coming up with such conversations, very casual, over some interesting food at Sante Spa Cuisine. And
Like I said, this concept is called as Table Talks at Sante. So we'll keep being in touch with you. If you like this content, do comment, like, and share. And if you have got interesting anecdotes on what should be done on this kind of shows, please share those comments with me, and I'm sure I'll be implementing it in the next session of Table Talks at Sante Spa Cuisine. My gratitude and thanks to my partners Sonal Barmecha and Kailash Biani, and my gratitude to Shailendra Chef, the chef Shailendra Kekade, the celebrity chef who leads from the front for all the phenomenal tasty food that you enjoy at every Sante, irrespective of the city. Thank you so much. Life is all about inspiring conversations. One of the concepts that I love being a part of is Sante Spa Cuisine. And we have come up with a wonderful idea where we ideate with successful people who have achieved big time in life, but who have also had a lot of failures, and they learned from those failures and changed the game of life that they were playing at. Inspiring conversations with such people creates content which becomes extremely valuable to everybody who can get access to such content. So it is an effort for us to start content creation at Sante Spa Cuisine, and we call it as Table Talks at Sante. You will be seeing multiple series of that with multiple individuals who have been there, done that, are change makers, are the people who drive the society, and are the people who make India proud. This is Agnello Rajesh, and I would love to continue this series of Table Talks at Sante. You will keep meeting us very often with different people, different topics, but inspiring conversations at nowhere else but Sante Spa Cuisine. Thank you so much.